Welcome back to Exam 1. My name is Dinesh. In today's class, we are going to talk about very important things that are something very important that is going to be a big game changer for your coming exams. It could be a game changer, guys. So I'm talking about practice set that I have made for you especially. And in today's class, we'll be talking about different sort of questions based on your exam, and make sure that you take the class from beginning to end and remain there. Ask as many questions as you have about any doubts, and do not feel shy and nervous. Okay, so what you need to do is you have to focus on the questions I'm going to explain to you from here, and if you have a doubt in between, you can ask me. बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास कंपैरेटिव एग्जाम में जो हम पूछते हैं, हमारे पास आते हैं, तो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ from different sort of topics in the English language. Okay, you have wide range of vocabulary, you have wide range of grammar and its uses. There are so many rules of grammar. You can say unlimited rules of grammar. Nobody is going to learn them, and nobody can learn them or remember them for a long time. What we can do is you need to understand and focus on the important areas. What is the most important area, and what are the most important questions you need to understand. Okay, you need to go through. This is very important. Approach, time management, and study something from examination point of view. These three things are very important in order to pass an exam or crack an exam or pass a test. So let me tell you one thing here. If you are preparing for a government job or entrance exams, you need to focus on examination point of view. You know, those things which are very important. Like, there are so many things to learn, but what is it that you need to go through for your exam? Whether you are learning something from your examination point of view or not, this is very important. Okay, this is going to be very important. So let me start with the question paper. The practice set. Today's first question is, select the option that expresses the given sentence in direct speech. सेंटेंस है आपके पास, मनन said that he had no work to do that day. रिपोर्टिंग हो रही है सेंटेंस में. जब रिपोर्टिंग हो रही है तो किस में हो रही है? देखिए, said that आ रहा है. that क्या आपका कनेक्टर है, तो सेंटेंस इज इन द इनडायरेक्ट स्पीच, और आपको चेंज किस में करना है? डायरेक्ट स्पीच में. ठीक है, डायरेक्ट का सर इनडायरेक्ट स्पीच हम बनाते हैं, या इनडायरेक्ट का डायरेक्ट. तो क्वेश्चन कैसे ही पूछ सकता है? तो अब आपका क्वेश्चन शुरू हो जाता है. पहला है, मनन said I had no work to do today. दूसरा है ऑप्शन, मनन said I have no work to do that day. Option C, Manan said, have I no work to do that day? Manan says, I had no work to do that day. चार options हैं. Tell me which one will be the correct answer here. Take your time. Okay, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए बताइए जरा. देखिए, आपको बता देता हूं मैं. पहला जो सेंटेंस है, मनन said I have no work. have का पास क्या होता है? had होता है. I have no work today. today का क्या होता है? that day. टुडे इज चेंज टू दैट डे. तो इसका मतलब टुडे और दैट डे और हैव का हैड. पहला ऑप्शन सही जा रहा. देखिए, पहला ऑप्शन है मोहन. मनन सेड आई हैव नो वर्क टू डू. इसका आंसर होगा मनन सेड दैट ही हैड नो वर्क टू डू दैट डे. प्रोनाउन चेंज होगा, हैव टू का हैड टू हो रहा है, ठीक हो गया है, और टुडे को चेंज कर दें दैट डे में. तो दैट डे का टुडे, टुडे का दैट डे. इसका मतलब बी का ऑप्शन कहां पे गलत है? यहाँ पे मनन सेड आई हैव नो वर्क टुडे, यहाँ पे आई हैव नो वर्क टू डू दैट डे. आई हैव नो वर्क टू डू टुडे. टुडे का दैट डे होगा, इससे पहले दैट डे दे दिया है. यहाँ पे एरर मारा सेंटेंस. तीसरा कह रहा है भाई, क्वेश्चन फॉर्म में जा रहा है, क्वेश्चन नहीं पूछ सकते आप. यहाँ पे आई हैड, ये देखो, ये सात तीन गलत है. आई हैव नो वर्क टू डू का मतलब है दैट ही हैड नो वर्क टू डू दैट डे. टुडे इज चेंज टू दैट डे. तो पहला ये ऑप्शन सही है. तो कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपको कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट करना है, वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एग्जाम, बिकॉज इन 4 ऑप्शंस 2 ऑप्शंस आर फार अवे फ्रॉम द क्वेश्चन. बहुत दूर के होते हैं, उनको एलिमेंट थर्ड एंड फोर्थ वाला देखिए. यू कैन लुक एट एग्जाम्पल सी एंड डी. दे हैव नथिंग टू डू विद द क्वेश्चन. देखिए, हैव आई नो वर्क, बिकॉज अगर एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस में अगर क्वेश्चन होता है तो वहां भी क्वेश्चन ही होता है, और डायरेक्ट स्पीच में अगर क्वेश्चन है तो इनडायरेक्ट में भी क्वेश्चन ही होगा. लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में पूछा है तो वहां पे क्वेश्चन मार्क नहीं है. देखिए, तो वहां पे क्वेश्चन भी, इसका आंसर भी जो क्वेश्चन वाला नहीं होना. जैसा आपका स्टेटमेंट होता है डायरेक्ट में, वैसे इनडायरेक्ट में होता है, वैसे इनडायरेक्ट का डायरेक्ट में. तो पहला ऑप्शन हो गया आपका, मनन सेड आई हैव नो वर्क टू डू दैट डे. टुडे, टुडे का हो जाता है दैट डे. क्लियर. वी चेंज हैव टू इनटू हैड टू. हैड टू का हैव टू, हैड टू का हैव टू का हैड टू, और टुडे का हो जाता है दैट डे. और दैट डे दिया तो टुडे में चले जाएगा. दैट्स इट. ओके, टुडे मींस दैट डे. दैट डे का मतलब टुडे. कब? व्हेन वी टॉक अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच और नरेशन.
Question number 2. Select the most appropriate synonym of the given word. Lacuna. Tell me. Take your time. Take your time and let me know the answer. Let me know the answer. फटाफट बताइए जरा. बहुत बार आ चुका है वर्ड. What do you mean by lacuna? Who will let me know the meaning of this? बताइए. एक तरह से क्या होता है, ये स्पेस होता है. लकुन का मतलब होता है एक स्पेस होता है, खाली जगह को बोलते हैं लकुना. मिसफॉर्च्यून, लैंगोर. हाँ बताइए बताइए. स्पेस होता है ना, खाली जगह, बिल्डिंग का कोई एरिया होता है उसे बोलते हैं लकुना. हाइटस का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस ऑफ समथिंग. लकुना का मतलब सम एम्प्टी स्पेस इन अ बिल्डिंग. यू कैन से एम्प्टी स्पेस ऑफ बिल्डिंग का मतलब है यहाँ पे ऑप्शन डी की तरफ भाग रहा है. ऑप्शन डी का मतलब हो जाएगा हिएटस. हिएटस का मतलब होता है एक तरह से क्या कहते हैं इसे बोलते हैं, हम बोलते हैं ओपन स्पेस ऑफ समथिंग. ओपन स्पेस ऑफ समथिंग दैट इज कॉल्ड. ऑप्शन डी में जा रहा है. ऑप्शन डी का हो जाएगा आपका, यहाँ पे ऑप्शन जा रहा है डी. हिएटस मीन्स होता है लकुना विच मीन्स एम्प्टी स्पेस इन अ बिल्डिंग. ओके, एम्प्टी स्पेस इन अ बिल्डिंग. बिल्डिंग में किसी एरिया में जो है कोई खुला स्थान हो तो उसे बोलते हैं लकुना या हिएटस. हिएटस. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. एंटोनिम का जानते हैं अपोजिट वर्ड. एसेंट, डिसेंट. एसेंट उतार, असेंडिंग ऑर्डर होता है ना, एसेंट ऊंचाई और डिसेंट नीचे की तरफ. मतलब एसेंट क्या होता है, डिसेंट. तो ऑप्शन ए ही जा रहा है मेरे ख्याल से. देखिए बच्चों, ऑप्शन ए बहुत ही सिंपल वर्ड है ये तो, खैर आपको पता ही है. ऑप्शन होगा आपका ए, डिसेंट. ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए में जाएगा आपका, ये है आपका डिसेंट. एसेंट, डिसेंट. क्वेश्चन नंबर 4 आइए. क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास है डार्क हॉर्स. इडियम का नाम है डार्क हॉर्स. व्हाट डू यू मीन बाय डार्क हॉर्स? कई बार मैं बता भी चुका हूं, रिपीट भी होता रहता है. क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में. डार्क हॉर्स इज अ पर्सन who does not want to show his talent and caliber, or you can say ability in front of someone else. If you are sitting in the class and you do your work sincerely and you are disciplined enough and you do not show off yourself there, आप अपने आप शो ऑफ नहीं करते, एंड जब समय आता है तभी आप अपने आप को दिखाते हैं कि यस, जैसे एग्जाम होता है और आप जो है सबसे अच्छे मार्क्स लेके आप सामने आ जाते हैं तो किसी को पता नहीं चलता कि आप जो है कभी आंसर देते थे क्लास में. कई बच्चे से होते हैं. देयर आर सो मेनी डार्क हॉर्स इन योर क्लासेस मे बी. Okay, and the people or the person who does not want to showcase his talent in front of the crowd, he is called dark horse. One kind of unexpected winner, जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते. We do not expect that he will do something like this. We say dark horse. He is a dark horse. इसका मतलब an unexpected winner. In Hindi, many people use छुपा रुस्तम. छुपा रुस्तम कहते हैं ना, बड़ा छुपा रुस्तम निकला. You did not tell me about these things and we did not know. We did not know about you like this and we did not expect anything like this. तो हम जब कोई से एक्सपेक्ट नहीं करते किससे और उसके बाद वो खरा उतरता है, आ जाता है, तो उसके सामने आ जाता है हीरो बन के या विनर बन के या किसी भी चीज़ में हो सकता है. इट कुड बी अ बिजनेस, इट कुड बी स्टडी, एनीथिंग एल्स इन योर लाइफ, एवरी वॉक ऑफ लाइफ. दैट इज कॉल्ड डार्क हॉर्स. इफ यू आर अ डार्क हॉर्स, you would be an unexpected winner in every walk of life, maybe in your education also. तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी हो जाएगा आपका. बी हो जाएगा, an unexpected winner is called a dark horse. क्वेश्चन नंबर 5 में आइए. select the correct passive voice of the sentence. passive voice, प्रीति invited Ritu for a party. अब बताइए, प्रीति इनवाइटेड रितु फॉर अ पार्टी. प्रीति इनवाइटेड रितु फॉर अ पार्टी, इसका मतलब सिंपल पास्ट में हो रहा है. सिंपल पास्ट में क्या होता है, वी टू इनवाइटेड. एंड व्हाट हैपेंस इन द सिंपल पास्ट इन द एक्टिव इन द पैसिव वॉइस, वी हैव, वाज, वर एंड थर्ड फॉर्म एज आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो. तो क्या होना चाहिए,
पास पर में वॉज वाला देखिए, पहले क्या करें, एलिमिनेशन कर लेते हैं। एलिमिनेशन देखिए, पहला सेंटेंस बाहर हो गया ए वाला, रितु वॉज इन्वाइटेड फॉर अ पार्टी बाय प्रीति, पहला दूसरा वॉज आ रहा सही जा रहा है। तीसरे में हैज बाहर हो गया, चौथे में वॉज इन्वाइटेड फॉर अ पार्टी बाय रितु, प्रीति वॉज इन्वाइटेड फॉर अ पार्टी, प्रीति, अच्छा हाँ तीसरा भी बाहर हो गया है, देखिए तीसरा बाहर हो गया, हैज आ रहा है, सॉरी मैंने देखा नहीं, हैज आ रहा है, केवल होगा चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा फोर्थ, प्रीति वॉज इन्वाइटेड फॉर अ पार्टी बाय रितु, क्योंकि सेंटेंस का जो पहला पार्ट है प्रीति इन्वाइटेड फॉर रितु फॉर अ पार्टी सिंपल पास्ट में, तो आंसर भी सिंपल पास्ट देगा, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। प्रीति वॉज इन्वाइटेड फॉर अ पार्टी बाय रितु विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6, द ओल्ड लेडी नीडेड लव एंड केयर बियॉन्ड मनी, जो बियॉन्ड है क्या सही है सेंटेंस में? डू यू थिंक द सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट और डू यू थिंक वी नीड टू मेक सम करेक्शन इन एंड वी नीड टू रिप्लेस बियॉन्ड विद समथिंग एज given in the passage, given in the, you can say, options? Tell me. The old lady needed love and care beyond money. Beyond meaning क्या है कि the lady needed love and care apart from money. money के अलावा उसको और भी चाहिए था, इसका मतलब besides. Yes, beyond is not a correct word here. It does not make a sense in the sentence. We need to get besides here. Beside का मतलब था apart from, अलावा. The lady needed love and care apart from or besides money. मनी के अलावा उसको क्या चाहिए था? मनी तो चाहिए था, उसके अलावा उसको प्यार और केयर की भी जरूरत थी, तो इसका मतलब अपार्ट फ्रॉम। अपार्ट फ्रॉम का मतलब था बिसाइड्स। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्लेंच, बताइए क्लेंच का मतलब क्या होता है, उसका अपोजिट ढूंढिए। क्लेंच, क्लेंच का मतलब होता है अ पर्सन हु इज नॉट रिलैक्स्ड, जो रिलैक्स नहीं होता है उसे बोलते हैं क्लेंच है। क्लेंच का मतलब है जो रिलैक्स नहीं होता है, रिलैक्स न होना। क्लेंच, टाइटन, क्लैप्स, होल्ड या रिलैक्स। इफ यू आर क्लेंच यू आर नॉट रिलैक्स्ड, बी रिलैक्स। ओके, तो ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन है रिलैक्स का। रिलैक्स का मतलब है, इसका अपोजिट हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगी। ओके, नंबर 7, 8 देखिए। Select the option that expresses the given sentence in the passive voice. Passive voice में sentence देखना है। The Smiths have put up a huge Christmas tree. The Smiths have put up a huge Christmas tree. ये है sentence और sentence is in the present perfect tense. Let me know the answer. Option पढ़िए। You have 4 options. फोर ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ह्यूज क्रिसमस ट्री हैज बीन पुट अप बाय द पार्ट स्मिथ्स। ह्यूज क्रिसमस ट्री इज पुट अप बाय द स्मिथ्स और a huge Christmas tree is being put up and a huge Christmas tree was put up. देखिए सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में, तो आंसर ही प्रेजेंट परफेक्ट देगा। a huge Christmas tree has been put up by the Smiths। पहला ऑप्शन सही है। दूसरे में is put up आ रहा है, तीसरे में is being put up आ रहा है और चौथे में was आ रहा है। तो पहला जो सेंटेंस है वही आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो आंसर आपका प्रेजेंट परफेक्ट में ही देगा। तो फर्स्ट आंसर विल बी करेक्ट हियर, ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट हियर। ओके, द स्मिथ का मतलब स्मिथ लोग, स्मिथ के बहुत सारे किसी के नाम से पहले जब दे लगते हैं तो स्मिथ का मतलब द शर्मास, द स्मिथ्स, द बोहराज, ये क्या होते हैं? टॉक अबाउट ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली। द स्मिथ्स आर कमिंग हियर, इसका मतलब स्मिथ लोग अर्थात फैमिली। ओके, तो आर्टिकल दी लगता है, अभी ध्यान रखना। कभी कभी स्मिथ्स हैव पुट अप और ह्यूज प्रिस में आ जाता है, एरर में आ जाता है, आर्टिकल विल बी देयर, द स्मिथ्स, द शर्मास, लाइक दिस। क्वेश्चन नंबर 9, the following sentence has been divided into parts. One of them contains an error. Select the part that contains the error from the given options. Okay, so सबसे पहले क्या करेंगे? This question is quite too simple for me to answer. अब आइए ऑप्शन में। To answer is quite too this question is simple for me. You have to find out the error. दिस क्वेश्चन इज क्वाइट टू। टू तो एक्सेस खुद ही देता है ना भाई, टू तो क्वाइट, टू का मतलब होता है एक्सेस देता है, तो उससे पहले क्वाइट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत है, बी में। दिस क्वेश्चन इज टू सिंपल फॉर मी टू आंसर। इसका मतलब इतना सिंपल है, ये तो मतलब दिस क्वाइट सिंपल फॉर मी टू आंसर, इसका मतलब टू हटेगा यहाँ से, टू के बाद तो नेगेटिव सेंटेंस बनता है, ये हो जाएगा दिस क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल फॉर मी टू आंसर। बिल्कुल सिंपल है मेरे लिए, आई कैन आंसर इट।
विदाउट एनी प्रॉब्लम। इसका मतलब 2 के बाद तो 2 आता है, लेकिन यहाँ पे ये वाला 2 नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि दिस क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल फॉर मी टू आंसर इज करेक्ट आंसर। लेकिन 2 सिंपल फॉर मी अगर कहते हैं तो आंसर हो जाता है। इतना सिंपल कि आंसर दे सकता क्या? आप ये नहीं कहना चाहते, आप कहना चाह रहे हैं कि ये इतना सरल है कि मैं इसका आंसर दे सकती हूँ। ये नहीं कह सकते हैं कि इतना सरल है कि इसका आंसर नहीं दिया जा सकता। इसका मतलब 2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, दिस इज क्वाइट हो जाएगा, क्वाइट सिंपल। करेक्ट आंसर होगा बी। करेक्शन हो जाएगा इज क्वाइट सिंपल फॉर मी टू आंसर। Question number 10. Select the option that can be used as a one-word substitution for the given word group of words. Drawings of or writing scribbled on walls in public places. Public places में कई बार आपने देखा है कई लोग ड्राइंग बना देते हैं या स्क्रिबल कर देते हैं, पूरा दीवार जो है मतलब पूरा तरह से यूज कर देते हैं, अर्थात राइटिंग करते हैं वॉल, दीवार में लिखना। इसको क्या कहते हैं भाई? ड्राइंग और राइटिंग ऑन वॉल्स इन पब्लिक प्लेसेस इज कॉल्ड पोस्टर्स, स्केचेस, होल्डिंग्स। ये तो पोस्टर तो लगाते हैं, स्केचेस भी बनाया जाता है, होल्डिंग्स भी लगाई जाती हैं, लेकिन क्या कहते हैं इसको? इसको बोलते हैं ग्रेफिट, GRAFFITI, ग्रेफिट, ग्रेफिटी होता है, GRAFFITI, ग्रेफिटी। ड्राइंग्स ऑन राइटिंग ऑन पब्लिक प्लेसेस ऑन वॉल्स ऑन पब्लिक प्लेसेस कॉल्ड ग्रेफिटी। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट हियर, इट इज कॉल्ड ऑप्शन ए ग्रेफिटी। It is called graffiti. Option 1. Next question is 11. Select the most appropriate synonym of the given word. Solemn. Solemn, dignified, trivial, excited या frivolous. बड़ा सिंपल है, कई बार आ चुका है और बहुत ही सिंपल है। सोलेम, डिग्निफाइड जानते हैं आप? यस, सोलेम मीन्स होता है डिग्निफाइड। करेक्ट आंसर है ए, डिग्निफाइड। सिंपल। 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखना जरा। ओके, फिर यहां पे आ रहा है सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स एन एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इफ यू डोंट थिंक फाइंड एनी एरर, मार्क नो एरर एज योर आंसर। देयर इज अ वेरी लिटिल टाइम फॉर देम टू प्रिपेयर फॉर द शो। लेट मी नो द आंसर। There is a very little time for them to prepare for the show. There is a little time. Time is not countable here, guys, and we are not supposed to use article A here. What will we do here? We will remove article A from this sentence. It will be correct. There is very little time for them to prepare for the show is correct answer, but not a little time. Time is not countable. So यहाँ पे a little time, a little होता है लेकिन टाइम आ रहा है तो इसका मतलब लिटिल, a little, the little होता है लेकिन टाइम आ रहा है, तो यहाँ पे टाइम इज नॉट काउंटेबल। इसलिए जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे? आर्टिकल जो है ए यहाँ से रिमूव करेंगे। देयर इज लिटिल टाइम फॉर देम टू प्रिपेयर फॉर द शो। ऑप्शन बी में जा रहा है, ऑप्शन देखिए, देयर इज वेरी लिटिल टाइम। ऑप्शन डी, ऑप्शन यहाँ जा रहा है, देखिए डी ऑप्शन हो जाएगा, देयर इज लिटिल टाइम और वेरी लिटिल टाइम। ये आपका करेक्ट आंसर होगा डी, डी फॉर डेली। क्लियर? आर्टिकल ए हट जाएगा। नंबर 13 देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। हरीश वॉइस डैश इन द एम्प्टी रूम्स ऑफ देयर न्यू हाउस। किसकी बात है? रिप्लेस्ड, रिवर्टेड, रिसाउंडेड। रिसाउंड होना अर्थात हाउस में रिसाउंड होना अर्थात रिजॉर्टेड। टेल मी। His voice resounded in the empty room में क्या होता है? गूंजती ना आवाज, रिसाउंड होना होता है, एक तरह से गूंजना होता है। इसका मतलब होता है थर्ड वाला ऑप्शन है रिसाउंडेड। 14. The following sentences has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. Sentence है if he wants further information send him to me. देखिए guys, this is very important question and such questions are asked time and again in your exams. Okay, tell me the answer. If he wants, सी के साथ wants आ रहा है, ठीक है यहाँ तक। if he wants further information या farther का मतलब होता है distance, दूरी से। far से बनता है farther, talks about distance, लेकिन यहाँ पे है next information या ahead, further information, तो यहाँ पे आना चाहिए FUR वाला आना चाहिए। FURTHER, further information, that is called further but not farther. Option A,
फर्दर डिटेल्स, फर्दर इंफॉर्मेशन, बट नॉट फार्दर। फर्दर मीन्स होता है अहेड, फार्दर मीन्स होता है डिस्टेंस। Question number 15. Select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words. Study of insects, जहां पे इंसेक्ट्स की स्टडी की जाती है उस प्लेस को क्या बोलते हैं भाई? जीव जंतुओं की जहां पे अध्ययन किया जाता है, इंसेक्ट का अध्ययन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड, टेल मी, ऑप्शन ए एंटोमोनोलॉजी, जियोलॉजी, इकोलॉजी या बायोलॉजी? एंटोमोनोलॉजी, एंटोमोलॉजी, ऑप्शन ए होता है एंटोमोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। करेक्ट ऑप्शन है ए, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 16. Select the most appropriate meaning of the given idiom. Stones throw, stones throw, पत्थर फेंक देना जाए, something is a stone's throw. What do you mean by this phrase? Very important for you. Stone's throw आ सकता है, पूछा भी जा सकता है, कई बार आता, रिपीट हो चुका है कई एग्जाम में, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम एज वेल। Stone's throw, something is stone's throw means होता है, फॉर एग्जाम्पल हम कभी बात है ना, the airport is just a stone throw away from here, the airport is just a stone's throw from here। इसका मतलब नजदीक में है। एक पत्थर फेंकने कितनी दूर तक, बहुत दूर तक नहीं जाता ना पत्थर फेंकोगे, तो इसका मतलब है शॉर्ट डिस्टेंस, लार्ज हर्डल, डिवेलप प्रॉब्लम या हर्ट स्लाइटली, शॉर्ट डिस्टेंस, कोई नजदीक में होता है समथिंग। सो आपने सर कैन यू प्लीज टेल मी वेयर दिस एयरपोर्ट इज, मैं कहूंगा इट इज जस्ट स्टोन्स थ्रू डिस्टेंस, अर्थात जस्ट स्टोन्स थ्रू, सर पत्थर फेंकने का दूर, इसका मतलब नियर बाय, अर्थात इसका यू कैन से क्लोज टू समवेयर, इसका मतलब शॉर्ट डिस्टेंस, इट विल बी अ शॉर्ट डिस्टेंस। ओके, ऑप्शन हो जाएगा शॉर्ट डिस्टेंस, या इसका आंसर आता है नियर, कभी क्या आता है इसका, नियर, क्लोज, नियर बाय, व्हाटएवर। ओके, क्वेश्चन नंबर 17. सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जिसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है उसको ATTIC, एटिक, ये देखो एटिक को यहाँ पे इसी क्या है, एटिक का मतलब स्पेस होता है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे लग रहा है भाई एटिक। इन सब में एक ही स्पेलिंग अरे लग रही है, एस्ले, एडोन, आल्टर, एटिक, ATTIC की, तो ऑप्शन सी है, इसमें गलती है, ऑप्शन सी ATTIC है, एटिक होता है, के नहीं होता, ATTIC एटिक, स्पेस। क्वेश्चन नंबर 18. Select the most appropriate option that can substitute the underlined statement in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required. I imagine you have learned a valuable lesson from his experience, didn't you? This question is talking about question tag. Question tag जानते हैं guys, affirmative sentence होता है तो उसका question tag negative बनता है, अगर negative होता है तो affirmative बनता है। जैसे you are going to market, aren't you? You are not going to market, are you? You speak English, don't you? You don't speak English, do you? और इसका तरीका होता है कि हमें टेंसेज आने चाहिए, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी मस्ट बी अकाउंटेड विद हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स से बहुत इंपॉर्टेंट हमें होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब, डू और डज कहाँ पे आता है, डेट कहाँ पे आता है, विल और शेल कहाँ पे आता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दीस थिंग्स वेरी वेल, ओनली देन यू विल बी एबल टू यूज अ क्वेश्चन टैग प्रॉपरली एंड एक्यूरेटली इन अ सेंटेंस। हाउ टू यूज अ क्वेश्चन टैग? क्वेश्चन टैग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट for both writing and speaking skills. If you are going to write something very well, if you are going to speak something, it is very important. Okay, question tags are very important. I imagine you have learned a valuable, have learned present perfect में तो didn't नहीं आना चाहिए, क्योंकि जिसका जो helping verb है have है यहाँ पे। I imagine you have learned a valuable lesson, didn't you? Didn't you तो past के लिए होता है, तो haven't you is right answer. Okay, have you have learned का हो जाएगा haven't you, affirmative sentence, negative question tag। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आपका नेगेटिव क्वेश्चन टैग होता है। तो क्वेश्चन टैग को समझने के लिए यू नीड टू गो थ्रू टेंसेज वेरी वेल, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यू नीड टू बी वेल अकाउंटेड विद द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ द टेंसेज, बिकॉज इन सिंपल पास्ट टेंस वी हैव डिड, कभी वो पता नहीं चलता तो डिड होता है, तो यहाँ पे तो हैव है तो आपको पता चलता है, हैव का क्या हो जाता है, हैवंट हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, हैवंट यू। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्या आ रहा है, 19. So in the following sentence you can say the following sentence has been split into 4 segments. आपको क्या करना है, you have to find out the error if any in the sentence. Sentence है your elder sister
लिव्स इन अ बिग सिटी डज शी, अभी बताया था मैंने कि जब सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो सेंटेंस क्या आपका अफर्मेटिव है। देखिए सेंटेंस अफर्मेटिव है ना, तो क्वेश्चन टैग क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव सेंटेंस तो इसका मतलब डज शी यहाँ पे गलत है, डजंट शी होना चाहिए। तो ऑप्शन किस में जाएगा, ये हो जाएगा डज शी, ऑप्शन बी में हो जाएगा। ये हो जाएगा करेक्ट सेंटेंस होगा, योर एल्डर सिस्टर लिव्स इन अ बिग सिटी डजंट शी, यू लिव इन अ बिग सिटी डू यू, डोंट यू, यू लिव इन अ बिग सिटी डोंट यू, यू डू नॉट लिव इन अ बिग सिटी डू यू। ओके, तो क्वेश्चन को समझा रहा हूं मैं, अफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव टैग क्वेश्चन, नेगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20। गिवन बिलो आर द 4 सेंटेंसेस विच आर जम्बल्ड। जम्बल्ड सेंटेंसेस का तरीका मैंने आपको बताया, यू कैन टेक योर टाइम, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आपको। 4 ऑप्शन है आपके पास, ए बी सी डी, ए बी सी डी, चलो पढ़ लीजिए। क्वेश्चन पढ़िए, सेंटेंस पढ़िए पहले, उसके बाद अरेंज कीजिए। और तरीका बता दिया है, बहुत ही सिंपल बना दिया आपको मैंने, तरीका बताया कि हाउ टू फाइंड अ लिंक इन दीज सेंटेंसेस इज वेरी प्रीटी सिंपल। ए, इट इज अ पार्क क्वाइट different from any other we have seen. B, one difference is that it is made from nearly 250 tons of scrap. C, another difference is that it is powered by wind and solar energy. और ऑप्शन 4 है, a new park called Bharat Darshan Park has been thrown open to the public in New Delhi. पढ़ लिया? The sentence is talking about a park which is situated where? In New Delhi. Okay? तो सेंटेंस का ओपनिंग पैराग्राफ मिल चुका हमें। द सेंटेंस डी से स्टार्ट होने की कोशिश कर रहा है। देखिए, अ न्यू पार्क कॉल्ड भारत दर्शन पार्क हैज बीन थ्रोन ओपन टू द पब्लिक इन न्यू दिल्ली। यहां से हो रहा है क्योंकि इट इज अ पार्क नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम कोई चीज बताएं उसके बाद हम बोल सकते हैं वी कैन गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग दैट इज इट इज पार्क। ये सेंटेंस वन डिफरेंस कैसे आ जाएगा, नहीं आएगा पहले, अनदर देखो बाद में आ रहा है। ए बी सी जो है सेंटेंस को स्टार्ट नहीं कर सकते, स्टार्टिंग सेंटेंस होगा, ओपनिंग सेंटेंस और पैसेज विल बी अ न्यू पार्क। द सेंटेंस पैसेज इज टॉकिंग अबाउट अ पार्क विच इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। डी आ गया, डी से सेंटेंस शुरू हो जाएगा भाई, डी सेंटेंस शुरू करा। देखिए डी वाला ऑप्शन, अब देखो हम क्या करेंगे, ए वाला रिमूव कर दिया, बी वाला रिमूव कर दिया और डी वाला रह गया। डी ए या डी बी, देखिए बी और डी में से कौन आएगा, ए पहला ऑप्शन है, अ न्यू पार्क कॉल्ड भारत दर्शन हैज बीन थ्रोन ओपन टू पब्लिक इन न्यू दिल्ली, टू द पब्लिक इन न्यू दिल्ली। इट इज अ पार्क, देखो पार्क को आगे बढ़ाने वाला कौन है, पार्क है, तो डी के साथ ए आएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ए, इट इज अ पार्क quite different from any other we have seen। किसकी बात कर रहा हो, the park we have introduced first। जैसे हम कोई इंट्रोड्यूस करते हैं उसके बाद उसके आगे कौन सा सेंटेंस आता है, उसी के बारे में बता रहे। ए ऑप्शन इज टॉकिंग अबाउट द पार्क वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, डी ए। फिर बी आएगा, वन डिफरेंस इज दैट, अब दोनों में डिफरेंस बता रहा है, इज दैट इट इज मेड फ्रॉम नियरली 250 टन्स ऑफ स्क्रैप। अनदर डिफरेंस, वन के बाद अनदर आता है, पहले वन आएगा फिर अनदर आएगा, वन अनदर, वन टू वन अनदर, पहले अनदर नहीं आ सकता, तो उसका बी किसके बारे में बता रहा है, सी के बारे में बता, बी इज टॉकिंग अबाउट सी। इसका मतलब बी ऑप्शन में डी ए बी सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी ए बी सी। कैसे किया हमने, सबसे पहले पैसेज पढ़ा, उसके बाद वी understand passage very carefully and what is all about the passage is talking about the park which is located or situated in New Delhi। उसके बाद हमने लिंक ढूंढा, डी का लिंक किसके साथ है, ए के साथ, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, दैट इज कॉल्ड द क्लोज लिंक। क्वेश्चन नंबर 21। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 तक जो है पैसेज आएगा आपके पास। तो पैसेज को कैसे करते हैं, सबसे पहले पैसेज से पढ़ेंगे हम। द पैसेज इस किसके बारे में, योगा के बारे में। देखो ना, योगा इज डैश मोर इन वेरी सिंपल वर्ड्स गिविंग केयर डैश योर बॉडी माइंड एंड ब्रेथ इन योगा ड्रैग डैश द संस्कृत वर्ड यूज विच मीन्स टू यूनाइट और इंटीग्रेट। योगा इज डैश 5000 years old Indian body of knowledge। Yoga is all about harmonizing the body dash the mind and breath through means of various breathing exercises, yoga poses, asanas and meditations। Clear? This passage is all about meditations and yoga, importance of yoga and meditation।
ओके तो ये तो हमने देख लिया। इसमें जो बीच में फिलर दे रखे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, उनकी तरफ करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करें। ग्रामेटिकली भी हो सकता है एंड वोकेबुलरी के आधार पे हो सकता है। तो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। योगा इज डैश मोर, मैनी मोर, मच मोर एंड ऑल और फ्यू मोर। ऑल और तो फ्यू नहीं आ सकता, मच मोर, मच मोर। योगा इज मच मोर, ऑप्शन आ जाएगा। पहला ऑप्शन देखिए, योगा इज मच मोर। व्हाट मच मोर, आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए। मच मोर क्या भाई, पहले ऑप्शन हम सही कर लेते हैं। मच मोर आ जाएगा यहां पे। योगा इज मच मोर, योगा इज मच मोर क्या, इन योगा इज मच मोर इन एवरी, सॉरी इन वेरी सिंपल वर्ड्स गिविंग केयर। अब केयर के साथ ऑप्शन देखते हैं बी, आगे देखते हैं बी में। अब बताइए क्या आना चाहिए, कोशिश कीजिए। योगा इज मच मोर इन वेरी सिंपल वर्ड्स गिविंग केयर, किसको, डैश आवर बॉडी। रिसीवर क्या होता है, योर बॉडी इज रिसीविंग समथिंग, अर्थात टू योर बॉडी। ओके नंबर 2 ऑप्शन बी आ जाएगा। 22 का 2 करेक्ट ऑप्शन होगा 2, 22 का 2। यहां पे देखिए 2 में टू योर बॉडी माइंड एंड ब्रेथ इज योगा, गिविंग केयर टू योर बॉडी माइंड एंड ब्रेथ इज योगा। योगा इज डिराइव्ड, कहां से लिया गया है, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम वेयर, ओके इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम वेयर, ऑप्शन अब आ जाएगा। इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम वेयर, डिराइव्ड फ्रॉम, टेकन फ्रॉम, ओके इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम करेक्ट ऑप्शन होगा। डिराइव्ड फ्रॉम का मतलब बोरोड फ्रॉम या एडॉप्टेड फ्रॉम या टेकन फ्रॉम, यू कैन से फ्रॉम, प्रेपोजिशन फ्रॉम का यूज होगा। डिराइव्ड के साथ क्या आता है, फ्रॉम, तो डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड यूज विच मीन्स टू यूनाइट और इंटीग्रेट। योगा इज नंबर 4। नंबर 4 में देखिए योगा इज क्या आना चाहिए भाई, 500 years old से पहले आर्टिकल आएगा 1 A and D। टेल मी द आंसर, 5000 years, 5000 years old Indian body of knowledge. Article A will be there. It is a 5000 years old Indian body of knowledge. Yoga is all about harmonizing the body. नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। हाँ बताइए, बॉडी एंड डैश द माइंड एंड ब्रेथ थ्रू मीन्स ऑफ वेरियस ब्रीथिंग एक्सरसाइज, योगा पोजेज, आसन्स एंड मेडिटेशंस। टेल मी द आंसर, योगा एंड मेडिटेशंस, योगा एंड मेडिटेशंस, योगा एंड मेडिटेशंस, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, अबाउट हार्मोनी द बॉडी विद द माइंड या एट अक्रॉस ऑन द माइंड, विद, क्वेश्चन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा विद, ऑप्शन डी। योगा is all about harmonizing the body with the mind and breath through means of various breathing exercises, yoga poses, asanas and meditations. This is called one kind of cloze test, or you can say paragraph. Is in this paragraph what happens, you have been given some options to fill in the blanks and you need to choose the appropriate words. And what are the most important things for these areas, you need to be good at grammar skills as well as vocabulary, क्योंकि vocab अच्छी होनी चाहिए। आप पैसेज को पढ़िए, अंडरस्टैंड पैसेज, व्हाट इज ऑल अबाउट द पैसेज, उसके बाद कम टू द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ ऑप्शन आइए एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन ओवर देयर। ओके दैट्स ऑल टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइमिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। आई वांट यू टू लाइक दिस क्लास, शेयर it with your friends and subscribe to the channel so that you will be able to take more and more classes from us. Thank you very much.